آج میں آپ کو قلعہ کٹاس راج کی ایک ایسی تاریخ بتانے جا رہا ہوں جو شاید آج تک کسی نے آپ کو اس انداز میں نہ بتائی ہو۔ یہ کتبہ سندرداس ملہوترا کے بیٹے پراندرجیت لال کی یادگار ہے، جن کی عمر میں ہی کوئٹہ کے زلزلہ 1975 کے مشہور زلزلے میں وفات ہو گئی تھی۔ اس کتابے پر واضح طور پر اس دور کے عقیدت مندوں گلاب دیوی اور لالا للو رام کے نام اور ان کی طرف سے کرائی گئی سیوا، خدمت و تعمیر کا اندراج موجود ہے، جو اس مقام کی مذہبی اہمیت کا ثبوت ہے۔ یہ سنگ مرمر کا ٹکڑا دراصل کسی خاتون شریمتی جسودھا رانی کی یاد میں بنائی گئی مسافر خانہ اور مذہبی سرائے کا افتتاح کا کتبہ ہے۔ اس پر یادگار کے طور پر اور ان کے شوہر کی جانب سے دھرم پتنی یعنی بیوی کے احترام میں کروائی گئی سیوا کا ذکر ہے۔ اس کتبے پر دیوناگری میں 23 مارچ 1932 کی تاریخ کندہ ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ ڈلوال کے رہائشی کرشن لال ملہوترا نے کٹاس راج کی دیکھ بھال کرنے والی کمیٹی کو 50 روپے کا عطیہ دیا تھا۔ اس دور میں 50 روپے کی رقم کتنی بڑی اہمیت رکھتی تھی، اس کا اندازہ آپ اس مرمر کی تختی سے لگا سکتے ہیں۔ اس کتبے کے ٹاپ پر واضح طور پر مقدس نشان اسواستک اور اوم نظر آتا ہے۔ یہ تختی ایک عقیدت مند نے اپنی دھرم پتنی اہلیہ کی یاد میں کٹاس راج کے لیے وقف کی تھی، جو ظاہر کرتا ہے کہ صدیوں سے لوگ اپنے پیاروں کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس مقدس مقام پر سیوا کروایا کرتے تھے۔ اس کتبے پر بھی مذہبی علامت سواستک واضح طور پر کندہ ہے۔ اس میں ایک محترم خاتون شریمتی کا نام اور ان کی یادگار شامل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کتبے اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ ماضی میں زائرین اپنے پیاروں کے نام پر کٹاس راج کے اندر مختلف حصوں کی تعمیر اور سیوا کروایا کرتے تھے۔ یہ کتبہ دیوان سندر داس جی اور دیوان نند لال جی کے نام کا مرقع ہے۔ کتبے پر 25 اپریل 1913 کی تاریخ کندہ ہے۔ 1913 کا ایک تاریخی کتبہ ہے جو برطانوی دور میں کسی تعمیراتی کام کی یادگار کے طور پر لگایا گیا تھا۔ سنسکرت زبان میں کتاکش کا مطلب ہے روتی ہوئی آنکھیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اس تالاب کا شروعاتی نام وش کنڈن تھا، جو بعد میں امر کنڈ آب حیات کا چشمہ اور پھر ایکتاکش کنڈ کہلایا، جس سے بدل کر اس جگہ کا نام ککتاس پڑا۔ تاریخی و مذہبی اہمیت۔ ہندو اساطیر اور قدیم روایات کے مطابق یہ تالاب شیو کے آنسوؤں سے وجود میں آیا تھا۔ تاریخی کتب جیسے مہابھارت میں ذکر ملتا ہے کہ پانڈو بھائیوں نے اپنے بنواس جلاوطنی کا کچھ حصہ اسی جگہ کے قریب گزارا تھا۔ اشوک اعظم کا دور 3 صدی قبل مسیح۔ موریہ سلطنت کے مشہور راجہ اشوکا نے اپنے دور میں بدھ مت کی اشاعت کے لیے پورے برصغیر میں ہزاروں اسٹوپا تعمیر کروائے تھے۔ کتاس راج میں موجود اسٹوپا کے بارے میں مورخین کا ماننا ہے کہ یہ اسی دور 3 صدی موڑ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 12 دری ہون کنڈی۔ یہ 12 دری مقدس امرت کنڈ کٹاکش تالاب کے بالکل کنارے پر تعمیر کی گئی ہے۔ ہندو دھرم اور مقامی روایت میں ہون یا ہون سے مراد وہ مقدس آگ کا کنڈ ہے جہاں مذہبی رسومات، پرارتھنا اور ایگیا کیے جاتے ہیں۔ اس جگہ پر تالاب کے کنارے مذہبی رسمیں اور ہون کیے جاتے تھے، اسی مناسبت سے اسے ہون کنڈی کہا گیا۔ شیو جی کا مندر شیوا ٹیمپل اس پورے تاریخی کمپلیکس کا سب سے مرکزی، قدامت پسند اور مقدس ترین حصہ ہے۔ یہ مندر امرت کنڈ مقدس تالاب کے بالکل قریب اونچائی پر واقع استگھرا 7 مندروں کے سلسلے کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ مندر کا سب سے اندرونی اور مقدس ترین کمرہ ہوتا ہے، جہاں مرکزی دیوتا کا قیام مانا جاتا ہے۔ اس کے بالکل درمیان میں شیو لنگ، بھگوان شیو کی علامت نصب ہے، جو سنگ مرمر
या सियाह पत्थर का बना हुआ है। मजहबी यात्री और ज़ायरीन महाशिवरात्रि या दीगर त्योहारों के मौके पर इस शिवलिंग पर जल, पानी, दूध और फूल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। श्री रामचंद्र मंदिर इस तारीखी और मजहबी कम्प्लेक्स की अहम और नुमायां इमारतों में से एक है। ये मंदिर भगवान राम, उनकी ज़ौजा सीता और भाई लक्ष्मण से मंसूब है। कितास राज के दीगर मंदिरों के बरअक्स रामचंद्र मंदिर की एक खास बात यह है कि ये एक 2 मंजिला 2 स्टोरी बड़ी इमारत की सूरत में बनाया गया है। राजपूत फनी मुसव्वरी और रामायण के मुख्तलिफ मनाजिर की रंगीन तस्वीर बनाई गई थीं। अगरचा वक्त गुजरने के साथ और नामसाद हालात की वजह से ये नक्श व नुगार काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं, लेकिन उनके कुछ बकाया जात अब भी देखे जा सकते हैं। दाखिल होते ही एक बड़ा और कशादा हाल आता है, जहां कदीम ज़माने में यात्री और अक़ीदतमंद जमा होकर भजन, कीर्तन और मजहबी महफिलें मुनाक़द करते थे। मंदिर है ये पुराना मंदिर था जी, कह रहे हैं कि अभी एक्टिव नहीं है, तो मेन मंदिर वही था। ये पुराना मंदिर था ये इन्होंने हवा के लिए जो है ना वो, ये देखिए अंदर से खुफिया रास्ते निकलते हैं। ये हवा के लिए पहले लोग जो है ना सूरज की रोशनी और हवा के लिए कैसे ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना वो सेटिंग की होती थी। ये ऊपर क्या है जी, ऊपर भी कोई रास्ता है जी, नहीं तो किसी ने आजकल के दिनों में कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा जो है ये नज़ारा, यहाँ बैठ कर ऊपर से देखा करते थे, जो हम फिल्मों में देखते हैं ऊपर से जो बैठे होते हैं जनाब निगहबान, तीर कमान। मंदिर की दूसरी मंजिल पर छोटे कमरे और रास्ते बने हुए हैं जो कदीम दौर में पंडितों, पुजारियों के रहने और सुन्यासियों की इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल होते थे। मंदिर के ऊपर वाली मंजिल पर गंबद है, जिसका अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल गोल सर्कुलर है, जो नीचे मुरब्बा निमा रोम से मेहराबों की मदद से ऊपर की तरफ गोल शक्ल में बदलता है। गंबद की ऊंचाई और गुलाई इस तरह डिजाइन की गई है कि कदीम दौर में जब पुजारी या यात्री नीचे बैठकर मंत्र जाप या भजन गाते थे तो आवाज पूरे कमरे में गूंजती थी। हरि सिंह नलवा, जिसे बाज औकात महल या सिख दौर की हवेली भी कहा जाता है, उस तारीखी कम्प्लेक्स का एक इंतहाई अहम और खूबसूरत हिस्सा है। ये हवेली 19वीं सदी के अवाइल में सिख सल्तनत के मशहूर कमांडर इन चीफ हरि सिंह नलवा से मंसूब की जाती है, जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इस खते का इंतज़ाम संभाला और यहाँ क़याम किया। ये हवेली कितास राज कम्प्लेक्स की ऊंचाई पर रामचंद्र मंदिर और शिव मंदिर के करीब वाक़या है, जहाँ से पूरे अमृतकंड तालाब का नज़ारा किया जा सकता है। 2 मंजिला इमारत ये हवेली 2 से 3 मंजिला साखत पर मुश्तमिल है, जिसमें मुताद्दिद कशादा कमरे, बरामदे और अंदरूनी सहन बने हुए हैं। राजपूत और सिख फन तामीर। इमारत की तामीर में लाल और पीले रेतले पत्थर, सैंडस्टोन और चौने का इस्तेमाल किया गया है। उसकी बालकोनियों, जालीदार खिड़कियों और मेहराबों पर शाही राजपूत और सिख तर्ज तामीर का गहरा असर नजर आता है। सागवान या टाली की लकड़ी। ये दरवाज़ा पुराने ज़माने की मजबूत सागवान, टीक या टाली, शीशाम की लकड़ी से तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ये सदियों गुजरने के बावजूद अपनी असल ओरिजिनल हालत में महफूज रहा है। इस दरवाजे या उसके अतराफ के लकड़ी के पिनलों पर रंगीन या तराशी हुई तस्वीर बनी हुई हैं, तो उनका मजहबी और सकाफती पस मंजर है। इन हवेलियों के मरकजी दरवाज़ों पर अक्सर खैर व बरकत के लिए गणेश जी, भगवान कृष्ण या सिख हसातीर और पहलवानों मुहाफिजों की शबीहें बनाई जाती थीं। कितास राज के अहाते में सित गुरु का मंदिर उन 7 तारीखी मंदिरों के सिलसिलों का अहम हिस्सा है जो इस मुक़द्दस मकाम की क़ुदामत और रूह को जाहिर करते हैं। सित गुरु का लफ्ज़ी मतलब सच्चा उस्ताद या रूहानी रहबर होता है। इस मंदिर का ताल्लुक़ हिंदू शाही और कश्मीरी राजाओं के अदवार 8वें से 10वें सदी ईस्वी से है। तकरीबन 1400 साल पुराना मंदिर
अमारत की तामीर में मकामी रेतले पत्थर, सैंडस्टोन और चूने के मसालिहे का इस्तेमाल किया गया है, जो सदियों की मौसमाती तब्दीलियों के बावजूद कायम है। मंदिर का अंदरूनी मुरब्बा नमा कमरा छोटी और मोटी दीवारों पर मुश्तमिल है ताकि अंदर का माहौल ठंडा और पुरस्कून रहे। उस मंदिर की अंदरूनी दीवारों पर मजहबी अलामात, फूल बोटों के नक़ूश और कुदरती रंगों से पेंटिंग्स की गई थीं, जिनके धुंधले आसार अब भी महसूस होते हैं। दीम हिंदू रवायत के मुताबिक बड़े मंदिरों में बुनियादी देवता जैसे भगवान शिव का गर्भगृह होता था, जबकि साथ बने छोटे मंदिर देगर सानवी देवताओं जैसे गणेश जी, हनुमान जी, दरगाह माता और विष्णु जी की इबादत के लिए मखसूस किए जाते थे। उनकी बीरोनी दीवारों पर खूबसूरत पत्थर की तराश खराश, सहताकिया मेहराबें और अंदर दिए चिराग रखने के लिए छोटे ताकचे बने हुए हैं। 7वीं सदी ईस्वी में जब चीनी सियाह हेवन सांग यहाँ आया तो उसने अपने सफरनामे में लिखा कि उस उस्टॉपा और मंदिरों के पास एक बड़ी बुद्ध खानकाह और तालीमी उदारा मौजूद था, जहां 100 से जायद बुद्ध राहब मुकीम थे और मजहबी व तालीमी दुरुस हासिल करते थे। पहाड़ी गारें कतास राज के इर्द-गिर्द और पहाड़ी टीलों पर कुदरती और इंसान की तराशी हुई गारें मौजूद हैं। कदीम दौर में हिंदू सन्यासी, जोगी और बुद्ध राहब आबादी से दौर उन खामोश गारों में बैठकर चिल्ले काटते और रियाजत, तपस्या क्या करते थे। सिख और हिंदू शाही उद्वार में जब पहाड़ों पर दिफाई चौकियात या किला बंदियां की जाती थीं, तो उन कनुओं को इस तरह छुपाकर और तराश कर बनाया जाता था ताकि हमले या मुहासरे के वक्त भी पानी की फराहमी मुनक़ता न हो। अगर आप उस पूरे किस्से और वीडियो कंटेंट से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं और मज़ीद ऐसी तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।